There were four components of salary, four broad components of compensation that we were discussing in the last class. I've given you a chart. The first component was what was the first component? Dekho, write down. Make this chart. Salary structure. Make this chart. The first component is base pay, BASE, base pay. The second component is allowances. The third component is benefits and incentives. Benefits and incentives. The fourth component is rewards and recognition. मैम पहला क्या है? What? पहला क्या है? पहला क्या लिखे हुए हैं? Base pay. Base pay. ठीक है? किसे पढ़ा रही है क्या? अच्छा हो गया। देखो, सैलरी स्ट्रक्चर, कॉम्पेंसेशन पैकेज हम लोग पढ़ते हैं, उसको ब्रॉड 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन इसको यही चारों कंपोनेंट्स मेनली आपको हर जगह कॉम्पेंसेशन में मिलेगा। ठीक है? पहला है बेस पे, दूसरा होता है अलाउंसेस जो आपके सैलरी में आता है, तीसरा होता है बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, एंड द फोर्थ वन इज रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। द फर्स्ट वन इज बेस पे। बेसिक पे का नाम सुना है? बेसिक पे एक कंपोनेंट होता है आपके सैलरी का, बाकी जितना जो अलाउंसेस होता है वो इसी के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है? जैसे कि छोटा सा फिगर से ले लो, अगर 10,000 रुपए किसी की सैलरी है, जनरली कंपनीज क्या करती है कि उसका 40 से 50% को बेसिक पे रखती है। तो 10,000 का 40% कितना हुआ? 4,000 रुपए। 4,000 बेसिक पे रहेगा और उसके ऊपर अलाउंसेस जुटता जाएगा। ओके? हाँ, other than salary. Other than salary is allowance. Okay? The second point will be allowances. Allowance is what? Allowance is something which is allowed in the organization for a purpose. किसी कारण से किसी स्पेसिफिक खर्च को मीट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस को मीट करने के लिए जो आपके सैलरी में कंपोनेंट ऐड किया जाता है, that is known as allowances. You must have heard about various types of allowances like house rent allowance, leave travel allowance, education allowance, medical allowance, hill allowance, uniform allowance, meal allowance. The thing about allowance is कि ये variable होता है, यानी ये fixed नहीं होता है, और organization to organization ये vary करता है कि कैसे ये organization, किस organization में क्या allowance है। ठीक है? समझ में आई बात? तो बेस पे के ऊपर यानी बेसिक सैलरी के ऊपर अलाउंसेस दिया जाता है। अलाउंस का क्या मतलब होता है कि वो आपको सैलरी में दिया ही जाएगा, उसके लिए अलग से कोई बिल, कोई क्लॉज नहीं एडेड है। ठीक है? अलाउंस इज समथिंग व्हिच इज एडेड ओवर द बेसिक सैलरी एंड गिवन टू यू। फाइन? टुडे वी विल स्टार्ट विद बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स।
benefits and incentives. Morning everyone. Morning. वहाँ नहीं, वहाँ पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तुमको बोल रहा हूँ, इधर। क्या सब लाइन सीधा करिए। आपकी क्लास में वीडियोग्राफर आ रहे हैं, आपको कैमरा से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना काम करते रहिए, केवल शांति बना सकते हैं, आप आगे चलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Today we are going to start a new topic, which is the third component of salary structure. You drew the chart right now. The third topic is benefits and incentives. Now, benefit is something which is good to have in the organization. Something which is good to have. Good to have matlab? You feel good about it being a part of your organization, right? Like allowances, unlike allowances, which was something added in your salary, there for a purpose to meet certain expenses in your certain expenses. Like house rent allowance is the expense of renting a house, right? And various other allowances. Talking about benefits. Benefits are the good to haves in the organization thing. Understand it from this perspective. This is a college. Had the add-on course not been added in your syllabus, you still would have been studying. आप फिर भी पढ़ाई करते अगर कोई add-on course नहीं होता तो, right? There are other colleges जो add-on courses नहीं देते होंगे, right? पढ़ाई वहाँ भी हो रही है. Is it not a good to have thing? Add-on courses अलग से कुछ अगर आपको as a part of your curriculum दिया जा रहा है, which is enhancing your skill, which is generating your employability, is it not a good thing? Will it not be a good thing if there is a stationery shop which caters to all the needs of your stationery things in your college at your college reception? Will it not be a good thing? Right? That will be a good thing. But otherwise also, if those facilities are not provided to you, you still would be continuing. आप फिर भी continue करेंगे, right? Benefits यही होता है. Benefits का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको फैसिलिटीज के तौर पे दी जाती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. अभी के HR पैटर्न में the way companies are working, the way organizations are functioning, अभी के पैटर्न में one thing that has changed over the years in the working of HR is that people have a tendency to come and join the organization and then leave the organization, right? Employees अगर 2 साल 3 साल पे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे, इससे क्या नुकसान होगा? कंपनी को कोई नुकसान होगा? होगा? When an organization is recruiting you, first, recruitment is a cost borne by the company. 2, they'll have to bear all the recruitment cost, right? Second, they'll train you. For training, they might take a trainer either from inside the organization, या अगर कोई वैसा skill है, तो वो outside the organization से भी trainer बुलाता है, and they charge heavily, right? Recruitment is a cost borne by the company. Training is a cost borne by the company. Next thing, जब आप इस कॉलेज में पहले दिन आए, when you came here, you were hesitant. You were unaware of how the things exactly function in college. आपकी क्लासेस कहाँ हैं, कौन रूटीन क्या है, स्केड्यूल क्या है, which teacher will teach you what, how is the pattern of study, what is the process of assignment, right? Everything. आज वो स्टेटस है क्या? नहीं. आप वेल वर्स्ड है, आपको सब कुछ पता है, तो आप साइकोलॉजिकली
ज्यादा तेजी से काम करते हैं कि कम तेजी से? ज्यादा तेजी से। यही चीज किसी एम्प्लॉय के साथ भी होता है। आप 2 साल स्किल लिए, आपने 2 साल की ट्रेनिंग ली, 2 साल काम किया, आपकी परफॉर्मेंस शुरू में जब ऐसा ग्राफ ऐसा बनता है, परफॉर्मेंस रेट, परफॉर्मेंस ग्राफ कैसे बनता है? जब आप नए नए होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सीख रहे होते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे क्या करना है, आपको किसको रिपोर्ट करना है। There's a lot of chaos in you, you know, turbulent period होता है, settling down period। यहाँ से ग्राफ शुरू होता है, धीरे धीरे ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता है। ग्राफ में जोर से बोलो। हाँ, नीचे से शुरू होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है ना। आप हाँ नहीं, ये जीरो के नीचे से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका ये पीरियड सीखने का होता है। परफॉर्मेंस तो आप तब डिलीवर करते हैं ना जब आप सीख चुके होते हैं। हम इनिशियल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। फिर ये ग्राफ बढ़ता है। 2 साल 3 साल काम करने के बाद अगर आप छोड़ देंगे और कंपनी को फिर आप ही के पोजीशन पे किसी को हायर करना होगा, इट विल बी अ पेन टू द कंपनी। कंपनी को ये ज्यादा आसान लगता है कि आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दी जाए इस कंपैरिजन में कि एक फ्रेश हायर को लाया जाए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेवल बढ़ने के बाद ना मैम, बोलो। एक्सपीरियंस लेवल बढ़ने के बाद ही तो सैलरी इंक्रीज होगा ना। 2 साल में तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना। यस मैम। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अबाउट सैलरी इंक्रीज, दिस इज अबाउट योर परफॉर्मेंस इंक्रीज। ओके, यस मैम। ये पढ़ना शुरू हुआ। तो अभी के टाइम पे MNC इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Why are you so silent? You have studied industrial policy, right? आपको पता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे कैसे काम करती है। LPG पढ़ चुके हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया को खोला गया था, इकोनॉमी को। MNC इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और अभी कंडीशन ये हुई कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना सिर्फ बाहर की MNCs जिसके पास बहुत पैसा होता है, you know, MNCs have money as much as the GDP of a small country, इतना पैसा होता है उनके पास, and they can throw out in raise the small domestic companies, right? तो उनको भी कॉम्पिटेंट होना पड़ता है उसके लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल गए, एम्प्लॉयज अपने जॉब को छोड़ के जाने की टेंडेंसी बढ़ गई है। और ये नुकसान कंपनी को तब ज्यादा होता है जब कोई हायर पोस्ट का एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। अब कोई एग्जीक्यूटिव छोड़ करके चला जाए, कोई HR का एग्जीक्यूटिव छोड़ के चला जाए जो जस्ट फ्रेश ज्वाइनिंग है, 1 आध साल हुआ है, और कोई वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के चला जाए। वाइस प्रेसिडेंट, CEO, जनरल मैनेजर, these are what? These are the brains of the company. ये आपकी कंपनी के लिए उतने फायदेमंद है तो किसी और कंपनी के लिए भी उतने ही फायदेमंद होंगे ना। तभी उनको बुलाया जाता है कि हम आपको ज्यादा ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे पास आइए। तो पोचिंग भी कहते हैं, इस पे लिटरली केस भी हुआ है, पोचिंग। क्या आप एम्प्लॉयज पे, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं, कंपनी उस पे नजर रखती है अपने कॉम्पिटिटर्स के, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं या जो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन का आदमी होता है ना, उस पे कॉम्पिटिटर्स नजर रखते हैं कि इनको हम ज्यादा पैसा देके अपने पास बुला लें। अंडरस्टूड? तो वैसे में एम्प्लॉयज के छोड़ के जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। बेनिफिट्स को पहले सैलरी में एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम इंक्लूड किया गया कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ काम करते हैं, इसलिए उनका कुछ बेनिफिट्स करना हमारा कर्तव्य बनता है। So as a part of welfare program, अब the concept of benefits या the use of benefits in the salary has become more important and much more important than just being the welfare program. अब एम्प्लॉय को रिटेन करने में, एम्प्लॉय को एंगेज करने में बेनिफिट्स का बहुत बड़ा रोल है।
किसी वाइस प्रेसिडेंट के, किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, कोई अच्छी कंपनी अगर एमएनसी है, उसकी सैलरी लगभग 1 करोड़ होती है। आप उसकी सैलरी में 10 लाख बढ़ाएंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 लाख कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, जब आप वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि उस लेवल तक उस बंदे ने उस पोस्ट पे आने के पहले अपनी सारी नीड्स पूरी कर ली है। दे आर नॉट लाइक अस, दे आर नॉट मिडिल क्लास पीपल लाइक अस। वो महंगी से महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्टेबल हैं, उन्होंने पैसा बहुत सिक्योर कर लिया है, उन्होंने घर खरीद लिया है। दे आर लाइक accomplished in every sense. एक लेवल के बाद पैसा ceases to be the motivator. आपने फर्स्ट ईयर में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है, जल्दी से रिवाइज कीजिए। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में क्या था? 2 फैक्टर क्या था? दोनों फैक्टर रिवाइज करो, 2 मिनट सोच के बताओ। हाइजीन फैक्टर था और एक मोटिवेटर्स था। क्या था हाइजीन फैक्टर्स? और हाइजीन फैक्टर क्या होता है? मोटिवेट नहीं करता है हमारा, अगर नहीं प्रेजेंट रहे तो सेटिस्फैक्शन होगा, एक्चुअल में मोटिवेट नहीं करता है। कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इसका इनएडिक्वेट रहेगा तो फिर इसका असर होगा। बस यही होता है। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं वर्क प्लेस पे जिनके रहने से डिससैटिस्फैक्शन नहीं होता है। ये थ्योरी बहुत एप्रोप्रिएट थ्योरी है, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज बट फॉर लाइफ आल्सो। आप ऐसे समझिए इसको समझने के पहले, आप यहाँ हाइजीन फैक्टर्स, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं। आपका प्राइमरी काम पढ़ना, हमारा प्राइमरी काम पढ़ाना। इस क्लास में अगर फैन ना रहे, एसी ना रहे, लाइट ना रहे, तो पढ़ने आप तब भी आए हैं, पढ़ाने हम तब भी आए हैं। आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। कॉम्पैक्ट क्लास है, ह्यूमिड हो जाएगा। किसी तरह एक क्लास कर भी लिए तो अगले क्लास में हालत खराब हो जाएगी। और सारा दिन अगर रहना पड़े तो ऐसा तो नहीं है कि एसी चलने से ज्यादा समझ में आता है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर एसी नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाइजीन फैक्टर वही होता है, समझ में आया? जिनके रहने से सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं होता है, लेकिन उसके नहीं रहने से डिससैटिस्फैक्शन होता है, और उनके रहने से मोटिवेशन नहीं होता है। इसीलिए इसको डिससैटिस्फायर्स भी बोला जाता है, या फिर मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोला जाता है। मेंटेनेंस फैक्टर, डिससैटिस्फायर, हाइजीन फैक्टर, ये सब एक ही चीजें हैं। और सरप्राइजिंगली, जैसे अभी आपने कोई जॉब नहीं किया है तो इसलिए आपके लिए जॉब करना का मतलब सिर्फ पैसा होगा अभी, राइट? लेकिन ये एक थॉरली रिसर्च थ्योरी है और ये सही बात है। एक टाइम के बाद पैसा ceases to be the motivator। एक टाइम के बाद आपको सिर्फ पैसा मोटिवेट नहीं कर सकता है, लेकिन किस टाइम के बाद? जब आप बाकी सारी चीजें अचीव कर चुके हो। हाइजीन फैक्टर में सैलरी में डाला गया है, इसका मतलब एक टाइम के बाद सैलरी ceases to be the motivator। उसके बाद सिर्फ सैलरी से आपको और ज्यादा काम करने का और बेहतरी करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बेनिफिट्स का भी थोड़ा बहुत ऊंचे लेवल के एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स देने का भी यही फंडा है कि उनके सैलरी में उनको सब कुछ मिल चुका है। अब आप थोड़ा बहुत पैसा अगर बढ़ाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट बेनिफिट्स अगर आपकी कंपनी की अच्छी होगी तो ही विल बी रिटेन्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करके रखे, बचा के रखे, वो छोड़ के ना जाए। टू एन एक्सटेंट छोड़ के जाना इज फाइन, दूसरे एम्प्लॉइज आएंगे, माने उसका रेट होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है, लेबर टर्न ओवर का रेट होता है।
टू एन एक्सटेंट इट इज ओके, लेकिन आफ्टर दैट ये कंपनी को बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज को किस तरीके का बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कह सकते हैं आप प्राइवेट कंपनी की जनरली बात कीजिए तब आपको समझ में आएगा। कंपनी की कार में ट्रांसपोर्टेशन हाउस अलाउंसिंग भी मैम देती है, कार भी देती है, पेट्रोल भी देती है मैम। बोलो, मैम हाउस अलाउंसिंग भी देती है एम्प्लॉय को मैम। अलाउंस क्यों बोल रहे हो? आई एम नॉट टीचिंग अलाउंस, ये अलाउंस नहीं है, ये बेनिफिट्स है जो कि गुड टू हैव है ऑर्गेनाइजेशन में। बेनिफिट्स वो फैसिलिटीज होती हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन देती है। आप दोनों का वक्त खत्म हो गया। बेनिफिट्स वैसी फैसिलिटीज होती हैं जो आपको एज अ पार्ट, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं इसलिए आपको दी जाती है, लेकिन अगर आप बाहर से अवेल करेंगे इट विल बेयर ऑन योर ओन एक्सपेंस। जैसे कोई कंपनी आपको फ्री ट्रांसपोर्ट देती है, अपनी बस चलाती है, आप देखे होंगे जमशेदपुर वगैरह में टाटा वगैरह अपनी बस चलाती है ना। बहुत सारी कंपनी अपना अपना ट्रांसपोर्ट देती है, आपको पिक करेगी और आपको ड्रॉप करेगी, फिर अगेन आपको पिक करेगी ऑफिस से और आपको ड्रॉप करेगी। इज इट नॉट अ बेनिफिट? अलाउंस क्या बताए, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये एक्स्ट्रा है, ऊपर की बात है। नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब मैम देखिए जैसे बेनिफिट का मेन काम क्या होता है, अलाउंस इज पार्ट ऑफ योर सैलरी, ठीक है, और बेनिफिट आपको रखने के लिए यहाँ पे रिटेन करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आप इस कंपनी को ना छोड़ के जाएं, आपको एक अटैचमेंट हो इस कंपनी से, आपको ये फील हो कि ये कंपनी आपके लिए, एम्प्लॉइज के लिए सोचती है। बेनिफिट्स दोनों तरीके का होता है। पर्सनल कार्ड्स भी दे सकती है मैम। हमारी कंपनी में ट्रांसपोर्ट था, बेनिफिट्स था, देयर वर डेज कंपनी का जो प्रोडक्ट्स होता था वो हम लोगों को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता था, तो बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं, बताते हैं सुनो। जैसे अगर आप इन्फोसिस में हैं, आपका कोई फ्रेंड टीसीएस में काम कर रहा है, ठीक है, और आपके पास आपकी कंपनी फ्लेक्सिबल आवर दे रही है काम करने के लिए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के काम से आप बाहर जा रहे हैं, आप छुट्टी नहीं लेना चाह रहे हैं, या आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं उस टाइम पे क्योंकि ये काम आप ही को करना है, आपको फ्लेक्सिबल आवर्स दिया जा रहा है कि आप 8 बजे ना सही आप 10 बजे लॉग इन कर लीजिए, आप सिर्फ काम खत्म करके हमको दे दीजिए। क्या ये बेनिफिट नहीं है? अभी वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल फैशन हो गया कोविड की वजह से, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ बेनिफिट। कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 3-4 महीने वो बेड रेस्ट पे हैं, नहीं उठ सकते हैं, या जो न्यू मदर्स होती हैं जो तुरंत बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती हैं ऑफिस और उनका मैटरनिटी लीव खत्म हो गया है, दे वर गिवन वर्क फ्रॉम होम। तो ये सब बेनिफिट्स ऐसी होती हैं जो पैसे में, इसका मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी बेनिफिट्स होती हैं कि यू फील फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन फील्स फॉर यू, राइट? जैसे बेनिफिट्स में यू आस्क्ड, वी आर गिवन टी, कॉफी और एनीथिंग ऑन डिमांड, जितनी बार आपको दिन में जब आपको रिक्वायर्ड है। ओके, और बेनिफिट्स आप ये देखेंगे कि आजकल एमएनसी के कॉन्सेप्ट की वजह से फॉरेन कल्चर, जैसे एमएनसी का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी, कोई कंपनी जैसे इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है, पुणे वगैरह में जो मेट्रोज है वहाँ ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, पटना एंड ऑल आर स्मॉल सिटीज, तो ज्यादा एमएनसी इधर। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर अपने पेरेंट कंपनी में बेस्ड होता है और उसका ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, अमेरिकन कल्चर भी, ये जस्ट इज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वुमेन्स डे सेलिब्रेट करता है ना ऑर्गेनाइजेशन, दे सेलिब्रेट, women are just
दे आर रिक्वायर्ड, कहीं बोला जाता है क्योंकि ड्रेस व्हाटएवर यू वांट टू ऑन दैट डे, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यू ड्रेस व्हाटएवर यू वांट टू ड्रेस, केक कट कराया जाता है, गिफ्ट्स दिया जाता है उसको एज अ पार्ट ऑफ द जेस्चर, एज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट कि we celebrate women employees in our organization, right? Don't you feel attached with the organization with this? आपको ये फील होगा कंपनी में इस चीजों का बेनिफिट्स, कंपनी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉयज को, बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का है, फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉयज को जैसे बाहर आप और हम जैसे कस्टमर्स हैं, तो हमारे लिए साल में वो कंपनी की स्ट्रैटेजी के तहत ऑफ या ऑफर ये सब निकालता है, उन लोगों को एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट ये दिया जाता है कि पूरे साल दे कैन अवेल 30% ऑफ ऑन द फैब्रिक्स। बिग बाजार में जितने कपड़े हैं पैरेंट्स पे, उनको 30% ऑफ पे ही वो ले सकते हैं। यानी अगर कोई कपड़ा 2000 का है तो उनको कितने पे मिल जाएगा? 1400। ग्रोसरीज पे भी उनका ऑफ रहता है, प्लस और भी ऑफ रहता है। देन व्हाई इज दिस बीइंग गिवन एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट? एट द सेम सैलरी आप और आपके दोस्त जब सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे और सैलरी सेम होगी, देन यू विल कंपेयर द बेनिफिट्स कि तुम्हारा क्या बेनिफिट है और मुझे क्या बेनिफिट है। एंड बेनिफिट इज वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू decide on being retained in this organization. You will want to be retained in that organization, and this is what the company wants. And this is what the company will want. कंपनी भी तो यही चाहती है कि वो आपको बेनिफिट दे। आपको लगेगा ना कि कपड़ों पे 30% ऑफ है, ग्रोसरीज पे 30% ऑफ है, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो वो सारा पैसा मुझे बेयर करना पड़ेगा बाहर। बेनिफिट्स दो तरीके का होता है, स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स, ये पढ़ाएंगे बाद में अलग क्लास में। स्टैट्यूटरी मतलब which is established by law, and non statutory मतलब ये विदाउट लॉ, मानी ये कंपनी की मर्जी पे है कि वो क्या देना चाहते हैं बेनिफिट्स। जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब कोई कंपनी चाहती है कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट दे, उसके रिसोर्स की कैपेसिटी में ये है तो वो दे सकती है। फ्री लंच, डिस्काउंटेड कूपन्स, एक कैंटीन में एक मील अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है तो उसका क्या, पार्लियामेंट की कैंटीन में जो खाना बनता है उसका वही रेट थोड़े पे करते हैं मिनिस्टर्स। वो बेनिफिट है कि नहीं? तो एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हम तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि वो बेनिफिट है ना। आप बाहर से वो खाना खाएंगे तो शायद 500 550 हो जाएगा, और कैंटीन में खा रहे हैं 10 रुपए में। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में डिस्काउंटेड मील भी दिया जाता है जहाँ खाना बनता है। आप सुने होंगे कि लंच वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंसेशनल रेट पे देती है। बहुत थोड़ा सा पैसा आपके सैलरी से काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा और आपको कूपन दिया जाएगा। तो बेनिफिट्स के बारे में 3-4 पॉइंट्स हमेशा दिमाग में क्लियर रखिए। Benefits can be monetary and non-monetary. Monetary मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे आपका ग्रुप इंश्योरेंस करवाती कंपनी, इंश्योरेंस में काफी पैसा लगता है। आप क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, इसलिए कंपनी आपका इंश्योरेंस बहुत थोड़े से पैसे में करवा दी, 1000 या 500 ऐसे बस, बिकॉज कंपनी को भी सस्ता पड़ता है और आपको भी सस्ता पड़ता है। लेकिन वो करवाई क्यों? क्योंकि आप पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप लोग का ऑनलाइन नहीं बनता है, आप क्लास में फिर ऑनलाइन क्यों ज्वाइन करेंगे? I'll make it, don't worry. और इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है बताइए? आपके पापा मम्मी सबका लाइफ इंश्योरेंस होगा। व्हाट इज इंश्योरेंस? इट्स अ प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क, किसी तरीके का रिस्क होता है, राइट? अभी कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स का इंश्योरेंस करवाई ना गवर्नमेंट, LIC का इंश्योरेंस होता है ना हम लोगों का, क्यों? ताकि जस्ट इन केस
something untoward happens to us, our family is secure. वर्किंग मेंबर का कराया जाता है कि अगर वो वर्किंग मेंबर चला जाए तो फिर उनकी फैमिली को सर्वाइवल का एक मींस मिले। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल होता है। तुम देखे हो कि कई बार देखोगे रास्ते पे, जैसे ये सब जगह पे नहीं, यहाँ से बनारस जाओगे या कहीं पे भी बाय रोड, कुछ कुछ ट्रक की ट्रक लाइन लगी रहती है। अगर वो सामान लेके आ रही है और उसको एक रोड परमिट दिया जाता है, ठीक है, रोड परमिट दिया जाता है, अगर रास्ता खराब है या कुछ हो गया, वो दूसरे रास्ते से नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? जब तक उसको उस स्टेट का जो अथॉरिटी है वो साइन करके लिख के नहीं देगा कि मैंने ये रोड परमिट पे साइन किया है। वो अगर दूसरे रास्ते से लेके गया और अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। वो तो अनऑथेंटिक कुछ होगा तब ना। अनऑथेंटिक की बात करें, मान लो टाटा से लेके आया, वो छड़ लेके जा रहा है और रास्ते में कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड जाम हो गया, 2-3 दिन बंद रहेगा, वो वहीं बसेरा बसा लेता है। क्योंकि जब तक उसको वहां का एसडीएम वगैरह लिख के नहीं देगा वो तब तक नहीं करेगा। उन लोगों को रोड परमिट होती है और इंश्योरेंस किया रहता है। अगर कुछ हो गया दूसरे रोड पे ले जाने से तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। तो कंपनी आपका इंश्योरेंस कराती है, आप जाएंगे आपका इंश्योरेंस होगा कंपनी में, या आपको जब पैसा आने लगेगा तो आपको ये समझ आने लगेगा कि इंश्योरेंस कराना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रेट, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड में जैसे फ्री मील मिल गया या अंदर कोई बेनिफिट मिल गया, आउटसाइड में जैसे कन्वेंस, बड़े बड़े जो एम्प्लॉयज होते हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, इन लोगों को चार्टर्ड प्लेन तक मिलता है, यूरोप का टूर मिलता है। आप अपनी फैमिली के साथ 15 डेज के लिए यूरोप चले जाइए कंपनी की तरफ से। ठीक है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, बिना पैसे का जिसका वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर आपको बेनिफिट्स जैसे कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग, नॉन मॉनेटरी, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, नॉन मॉनेटरी। तो इस तरीके की चीजें बेनिफिट होती है। बेनिफिट का मेन पर्पस क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज गिवन टू यू बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन, आई विल मेक यू राइट, डोंट राइट, आई विल मेक यू राइट, इसका नोट्स दे देंगे। आई गिव यू नोट्स सो दैट कभी फ्यूचर में यू नीड दैट to turn pages, at least you have things written and record. So benefits का 2-3 मेन पर्पस होता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? रोक के रखना, रिटेन करना। एंगेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट? डोंट स्माइल। नहीं नहीं, स्टूडेंट एंगेजमेंट अगर हम इस कॉलेज का बताएं कि इस कॉलेज का स्टूडेंट एंगेजमेंट, इसका मतलब है वी फॉर्म परसेप्शंस, हम परसीव करते हैं चीजों को अलग अलग तरीके से। आपका कॉलेज के बारे में कुछ राय होगी, जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उनके बारे में कुछ राय होगी, अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, आपको मन लगता है पढ़ने में नहीं लगता है। वी फॉर्म परसेप्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, we form perception of management. Similarly, employees also have perceptions about the organization, कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ एम्प्लॉयज के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। So in the nutshell, we can say that in a comprehensive manner, सम टोटल, सबको टोटल कर दीजिए, इमोशनल, फिजिकल चीजें जो भी आप परसीव करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो एम्प्लॉय सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वो कितना इमोशनली अटैच्ड है ऑर्गेनाइजेशन के से, इसको कहते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। और अभी का एचआर बहुत वर्क कर रहा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि आप इमोशनली अटैच्ड हो जाएं।
आई हर्ड ऑफ अ कंपनी, अमेरिका में एक कंपनी थी जिसमें कि फीमेल स्टाफ काम करती थी, और उन्होंने ये कंप्लेन किया कि हम लोग कैब से भी नहीं आ सकते क्योंकि बहुत रात हो जाती है, तो इट्स नॉट सेफ टू कम इवन विद अ कैब। तो कंपनी ने उनकी मदर्स को भी अलाउ किया और वो पैसा भी कंपनी बेयर की कि ठीक है आपको एक पेरेंट चाहिए होगा। कंपनी ये कर सकती थी ना कि वो धीरे धीरे उसको साइलेंट तरीके से फिर ओनली मेल मेंबर्स को लेते चली जाए। ये चीजें कंपनी करती हैं, वो चाहे जितना बोल दें, पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट देखती है। उनको लगेगा कि वुमेन एम्प्लॉय स्टेबल नहीं होती हैं, they leave after marriage, they leave after having a child, they'll not be able to concentrate better on work। तो वो कई बार प्रेफरेंस दे देती हैं मेल एम्प्लॉइज को। बट जो वो कंपनी थे, आई मिस दैट नेम, आई रेड इट इन एन आर्टिकल कि फिर वो कंपनी ने मदर्स को भी अलाउ किया और पैसा बेयर किया कि ठीक है आप मदर्स को लेके आ सकते हैं, यू फील सेफ व्हेन देयर इज सम फैमिली मेंबर ना। तो ये पार्ट ऑफ, हाँ, सेफ फील कराने के लिए, ताकि आप वर्क पे बेटर कंसंट्रेट करें, अननेसेसरी लीव ना लें। ये होगा ना, आपको किसी चीज के लिए रोका जाएगा अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं किया जाएगा, तो आपको एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहेगा ना, राइट। तो दीज आर कॉल्ड बेनिफिट्स। कोविड में बहुत सारे जो हायर ग्रेड के एम्प्लॉइज थे, जैसे सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये लोग अलग अलग जगह पे फंस गए थे। एंड अ पर्सन ऑफ दिस लेवल, हिज 1 hour इज इम्पोर्टेंट। एक एक मीटिंग उनकी इम्पोर्टेंट होगी ना, और वो 2-2.5 महीने के लिए नहीं फंस गए अपने अपने घरों पे। तो दे कंपनी सेड कि एज सून एज द फ्लाइट ऑपरेट्स, जैसे ही गवर्नमेंट आपको फ्लाइट ऑपरेट करने का परमिशन देती है, आप पहली फ्लाइट पकड़ के आइए, क्वारंटीन वगैरह सब चीज का खर्च कौन देगा? कंपनी देगी, अगर वो गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड नहीं है तो। और फिर वो आपको चार्टर्ड प्लेन से वहां से उठा के और लेके जाएगी। जैसे अफ्रीका इज सच अ बिग कंट्री, सच अ बिग कॉन्टिनेंट, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका, और वो कंट्रीज दूर दूर हैं। तो आप अगर आपका फ्लाइट अगर कहीं से इंडिया से कोई एम्प्लॉय गया, तो उसको दूसरी कंट्री जाने के लिए फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उसकी कंपनी ने बोला कि आपको हम चार्टर्ड प्लेन से उठाएंगे। साल में एक बार, जैसे अब यहाँ का कोई बंदा काम करता हो, सीईओ है और वो अफ्रीका में काम करता हो, वो स्विट्जरलैंड में काम करता हो, कनाडा में कंपनी ऑपरेट कर रही है, और उनको एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट प्लान ये बोला जाए कि एक साल में टू एंड फ्रो फ्लाइट का चार्जेस आपको और आपकी फैमिली का, टू योर वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, एंड सेम टू वुमेन एम्प्लॉइज, टू योर हस्बैंड एंड टू चिल्ड्रन, आने जाने का फ्री देगी, कंपनी बेयर करेगी। इज इट नॉट अ बेनिफिट प्लान? दिस इज अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। 2-2.5 लाख से टिकट का खर्च हो जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट इज बेनिफिट। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल करेंगे बेनिफिट और इंसेंटिव पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।